Good morning students. Today we are going to do part 2 of lesson number 3 and the name of the lesson is Plant Kingdom. So students, here we are seeing and we are learning about how the plant kingdom is classified into different groups. And in this lesson, in the previous classes, we have already learnt about when the plant was classified, what were the different streams and the history which were present while classifying the plant kingdom. So students, in our previous class we have learnt how algae was classified and what are the different groups which are present in the algae, right students? So let us learn let us learn few things which we have covered in our previous class. Students, in our previous class we have learned that when the plant is categorized, it is categorized on the basis of characteristics into still smaller groups. Okay, so we have seen that the plant is classified first into algae, then bryophytes, then pteridophytes, then gymnosperm, and the last one was angiosperm. Okay, and algae we have already finished. So in algae we have read about the different types of algae on the basis of the presence of chlorophyll in them. So we have seen green algae, then red algae and brown algae. And in today's class we'll extend our topic and we'll move to the next category or the next group of in which the plant kingdom has been classified, and the next group is the bryophytes. Students, a very important MCQ question is you have to name a plant or you have to name a group of organisms which is also known as the amphibians of plant kingdom, and the answer to this is bryophytes. Why bryophytes is known as the amphibian of plant kingdom? Because actually for its growth it can grow easily in the soil which consists of slight amount of moisture, but the process of reproduction requires water. If water is not present, then the process of reproduction cannot take place in bryophytes. Therefore, bryophytes has to depend on water for its reproduction. Therefore, bryophytes are known as the amphibians of the plant kingdom. Amphi means which needs both the type of things, means which needs soil also and which needs water also. So for the entire growth of bryophytes need soil plus water. If you look to still smaller categories in the bryophytes or to the examples of plants which come under the category of bryophytes, we can see that the bryophytes can be still categorized into two types of plants. The first category is known as liverworts and the second category is known as the mosses. And if you see the examples, under liverworts we'll see Marchanchantia, Rixia and Marchanchantia, which has a thallus-like body and which are very small and can be easily seen with the naked eye. The second category of plants which come under the bryophytes are mosses. And if you see the example of mosses, then Funaria is the best example for mosses, and it is also present Marchanchantia and Funaria you will also learn in your practical classes. So students, let us see the general characteristics of bryophytes. If we see the general characteristics of bryophytes, the first thing is the type of habitat. As I have told you earlier that they need soil and water. So the habitat is normally bryophytes love to grow. They are found in the damp places where both soil and water is present, and they may be found near the ditches. They may be found at the sides of river bank. Okay, and they are in plenty of where the annual rainfall pattern is higher. So, if you see in our eastern Ghats and western Ghats area of India, we can find, even in the Himalayan region, we can find a plenty of bryophyte growing there. The next thing is that this I have already discussed. They are known as the amphibians of the plant kingdom. The next point is that yes, the alternation of generation. What do you mean by alternation of generation? Actually, for the life cycle of bryophytes, the entire life cycle of bryophytes is divided into two stages. The first stage is known as gametophyte and the second stage is known as sporophyte. Gametophyte stage is the haploid stage where the chromosome number is N, right?
And then after the gametophyte, the second stage which is followed by gametophyte is the sporophyte, and sporophyte is the diploid stage. And if we see the bryophyte, then the dominant phase in the life cycle of bryophyte is the gametophyte, which is the haploid stage and which is the end stage. Okay, and after end stage, the next stage, that is sporophyte, will come, which is the diploid stage. Okay, so students, we will have more knowledge about the different examples which are present in the bryophyte with the help of certain slides. So be there. We'll move to slides for a in-depth study of the category of plant kingdom which is bryophyte. Right, students? Okay, students, so we are, I think on the screen you have the first slide. You have the first slide, and the first slide. Okay, so this is the lesson 3 and part 2, and the group of plants which we are going to learn today is Bryophyta, and under Bryophyta we are learning different categories of organisms like the liverworts and the mosses. Right, students? Okay. Okay, now students, I think the next slide is visible on the screen. So this I have already discussed. Just again we want to view this slide because just to understand the classification and the second group, since we are learning the second group of plants, Thallophyta, we have already, yes, on the screen. Now you have the second slide. Okay, so students, Thallophyta we have already gone through, and the next category that we are learning today is the Bryophyta. Okay, so the red mark that you can see here is Bryophyta, and yes, and if you see the characteristics, you can see that it is without specialized vascular tissue. Okay. So what do you mean by vascular tissue? Okay, student, vascular tissue refers to a type of tissue which helps in the conduction of water and nutrients. Okay, so Bryophyta are without any vascular tissue, and if you study the next category after Bryophyta, then that will be Pteridophyta, and that Pteridophyta plants have a well developed vascular tissue. So students, today we'll learn about Bryophyta. Moving to the next slide. Yes, students. So these are the general characteristics of bryophytes. Okay. Okay. So bryophytes, if you see, they are the non-vascular mosses and liverworts. जैसे मैंने आपको बताया था कि bryophytes में हम दो तरह के plants पढ़ेंगे, एक liverworts और दूसरा mosses. ठीक है. Liverworts का example है Rixia and Marchanchantia, और mosses का example है Funaria, and another is Sphagnum. ठीक है, Sphagnum. Next one is that the habitat, they mostly grow on moist and shady regions, and they are known as the amphibians of the plant kingdom. ठीक है. Okay. Now we'll see the certain general characteristics. Where are they found? They are found in the shady habitat. They grow more during rainy season. Why? Because plentiful of water is present. Therefore, they mostly grow in the rainy season on the damp soil, rock, wall. Okay, the next is the dominant phase. As I have told you that in the life cycle of bryophyte there are two phases. The first one is the free living gametophyte, and the second one is the sporophyte generation. ठीक है. Okay, so जो इसमें gametophyte generation होता है, ये इसका free living है, और dominant phase means which is present in the most part of the life cycle. Okay, तो ये gametophyte है, और ये कैसे, आपको मैंने बताया कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, N. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, तो वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो मतलब रूट्स नहीं है. सो हाउ इट विल एब्जॉर्ब वाटर? सो इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स with the help of
Okay, the structures which are known as the rhizoids. So rhizoids are root like structure, but they are not true roots. वो true roots नहीं है, just they are the root like structure, and they help in the conduction of water and minerals in the plant. Okay, next, now vegetative reproduction. If you see, vegetative, asexual and sexual, all the three types of reproduction takes place here, and vegetative reproduction takes place by fragmentation. Okay, so first is fragmentation, second is formation of tuber. Tuber means slightly swollen structure. Okay, and the third one is the presence of gemmae. Okay, this gemmae is again important from means it's a question. Means certain questions are asked from this point, gemmae, and we should know what is the gemmae or what is the gamma cup. Okay, actually these gamma cups, these are the structures which are present in the body of bryophytes, and they help in formation of certain spores which help in the reproduction, right students? Okay, now the sex organs are multicellular and jacketed, means they are present in a certain structure. Now अब अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन, जो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इस प्लांट में, उसका नाम क्या है? सो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज प्रेजेंट हेयर इन द ब्रायोफाइट इज नोन एज द एंथ्रीडियम. उसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द एंथ्रीडियम, एंड the female reproductive sex organ is known as the archegonium. Okay, and this antheridium produces a biflagellate anthrazoids. मतलब जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ओके, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसी तरह से जो एंथ्रीडिया मेल गैमीट्स जो प्रोड्यूस करता है, दे आर बाइफ्लैजिलेट फॉर देयर मूवमेंट एंड दे आर नोन एज एंथ्रीजॉइड्स. क्या कहते हैं इनको? एंथ्रीजॉइड्स. ठीक है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चीगोनियम प्रोड्यूस कर मतलब बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को आर्चीगोनियम कहते हैं, and it produces the single egg. It means whenever anthrazoids are produced in a larger number, and whenever this egg is produced, they are produced in very less number. Okay, so one archegonium give rise to only one egg, whereas one antheridium can give rise to many anthrazoids. Right, student? Okay, now the next one is sporophyte. We'll see the dependency. Okay, sporophyte is dependent on gametophyte for nourishment. Actually, when the plant grows with the help of, when the spore germinate and the new plant body is formed, that is gametophyte. I have already told you कि जब भी एक bryophyte germinate करके grow करता है, तो सबसे पहले उसके life cycle में क्या आता है? gametophyte. ठीक है, तो gametophyte give rises to sporophyte. gametophyte जो है वो sporophyte उससे बनता है. ठीक है, therefore this sporophyte is dependent on gametophyte for the nourishment. ठीक है, now we'll move to the next slide. Okay, so I think this is the next slide before you. So students, here you can see the next slide on the screen. Yes, here the plant body of the liverwort is thalloid. Okay, जो इसकी plant body होती है वो thalloid होती है. Thalloid means thallus like. Okay, कैसे? थैलस लाइक मीन्स एक्सपैंडेड. ठीक है, ओके, सो जो उसकी प्लांट बॉडी होती है वो थोड़ी सी एक्सपैंडेड होती है, एंड उसका एग्जांपल है आपका, मैंने आपको पहले ही बताया कि लिवरवॉर्ट्स का एग्जांपल क्या है? मार्केंशिया. ठीक है, और थैलस मतलब कि स्केल लाइक, जिसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दो अलग अलग जिसके फेजेस हैं. ओके, सो थैलस विच इज डॉर्सोवेंट्रल मीन्स अपसाइड डाउन. ओके, इसका एक डॉर्सल साइड है और दूसरा उसका क्या है? वेंट्रल साइड. ठीक है, so ये this is dorsoventral, thallus is dorsoventral and closely appressed to the substrate. It means कि वो जो उसका जो थैलस होता है वो सबस्ट्रेटम से बहुत ही पास होता है, वहां पे उसका चिपका सा होता है. ठीक है ना, बहुत ही फ्लैट जो इसका थैलस है वो फ्लैट तो है, लेकिन किसके क्लोज है? टूवर्ड द सबस्ट्रेटम. ठीक है, मीन्स टूवर्ड द बेस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, yes, if you see the asexual reproduction in liverwort takes place by fragmentation. asexual reproduction किससे होता है? ये होता है fragmentation से. ओके, और आपको मैंने बताया कि जो कुछ
जो रिप्रोडक्शन होता है वो गेमे से भी होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं गेमे, उससे भी होता है। विल लर्न मोर अबाउट गेमा एंड विल सी द स्ट्रक्चर ऑल्सो, उसका विजिबल भी हम देखेंगे, उसका एक पिक्चर भी देखेंगे जस्ट टू विजुअलाइज व्हाट इज गेमा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बोलूंगी आपको नहीं समझ में आएगा अनलेस यू सी द पिक्चर। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज गेमा। इतना तो सबको आपको समझ में आ गया, दे आर द रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज। ओके, सो गेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि गेमा क्या क्या है। गेमा एसेक्सुअल बर्ड है, मतलब गेमा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप्स। जिन स्ट्रक्चर्स में गेमे या एसेक्सुअल बर्ड्स मिलते हैं, सॉरी फॉर्म होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं गेमा कप्स। ओके, सो गेमा कप्स आर द स्ट्रक्चर्स इन विच asexual buds called gamete are formed. ठीक है, okay. Now the gamete becomes detached from the parent body and germinate to form new individual. जो ये gamete asexual buds हैं, जब ये gamma cups में फॉर्म होते हैं और फॉर्म होने के बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो एक तो हमने ये पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, फिर हमने पढ़ा कि फ्रैगमेंटेशन हो सकता है या फ्रैगमेंटेशन के अलावा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमे। ठीक है, गेमे गेमा कप्स में होता है और वहां से डिटैच होके एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। ठीक है, तो ये सारा तो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड विद द हेल्प ऑफ गेमे। Now we'll talk about the sexual reproduction. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thalli. Okay, sexual reproduction के टाइम पे क्या होता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ओके, दे आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। ओके, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, या तो वो सेम थैलस पे ग्रो कर सकते हैं या डिफरेंट थैलस पे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड थीटा एंड कैप्सूल। ओके, ये अभी हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक चीज ये था कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट में हम दो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। पहला आपको बताया था लिवरवॉर्ट्स और दूसरा आपको मैंने बताया था कि वी विल रीड अबाउट मॉसेस। ओके, तो यहाँ पे ये जो वी आर रीडिंग अबाउट द कैटेगरीज विच इज नोन एज द ब्रायोफाइट। ओके, नाउ स्पोर्ट्स, yes, we'll move to the, ये अभी आपको ये वाली लाइन बाद में समझ में आएगी। we'll move to the next slide. Okay, we'll move to the next slide. Yes, now here this is the diagram which is in your NCERT. सेम NCERT वाला ही डायग्राम है, थोड़ा एक्सपेंडेड कर दिया है आपको फॉर अ डीप अंडरस्टैंडिंग। यस, ब्रायोफाइटा अ लिवरवॉर्ट, और यहाँ पे जिस ब्रायोफाइट का ये डायग्राम दिया है, दिस डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ मार्केंशिया। किसका डायग्राम है ये? मार्केंशिया का डायग्राम है। ओके, एंड इस मार्केंशिया के डायग्राम में यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, इट इज नोन एज द फीमेल थैलस एंड द सेकेंड वन इज मेल थैलस। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि फीमेल थैलस जो है ये इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएगा और मेल ग्रो करेगा, एंड फीमेल थैलस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो करेगा। ठीक है, नाउ देखो अब ये स्ट्रक्चर आप देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो पूरा ये दिस स्ट्रक्चर इज द थैलस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है इसका? थैलस है। नाउ और ये राइजोइड्स देखो यहाँ पे, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर नॉट ट्रू रूट्स। ओके, सो ये राइजोइड्स है और यहाँ से ये राइजोइड्स के हेल्प से यहाँ पे ये किससे? थैलस से अटैच होता है। ठीक है, देन आपको गेमा कप्स मैंने बताया था, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ये देखो कप लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें गेमे फॉर्मेशन होता है, जो एसेक्सुअल बड्स होते हैं, राइट। ओके, नाउ ऑन द थैलस यू कैन सी अ अपराइट स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी, और ये मेल थैलस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये कुछ अपराइट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये अपराइट स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि ये फीमेल थैलस है, सो फीमेल थैलस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ certain reproductive structure which are the female reproductive organs, and the female reproductive organ is known as archegonia या archegoniophore। ये upright structure तो हो गया archegoniophore, और जो इसमें जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया? आर्चिगोनिया। ओके, इसी तरह से एंथ्रीडियोफोर जो अपराइट स्ट्रक्चर है ये वाला,
जिसके अंदर, जिसके ऊपर एंथ्रीडिया ग्रो करते हैं, इस अपराइट स्ट्रक्चर को हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं. ओके, and the structure which is formed by the anthridiophore will be anthridia. और यहाँ पे जो है आर्चिगोनियोफोर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, आर्चिगोनिया. ओके, अच्छा ये मुझे आपको ये वाले जो डायग्राम है यहाँ पे कुछ आपको बताना था कि व्हेन यू लुक टू सम अदर बुक्स इवन आई हैव रेफर्ड, यहाँ पे गलती से क्या कर दिया गया है कि जो मेल थैलस कुछ बुक्स में इस तरफ आ गया, फीमेल थैलस इसको इस तरफ, मतलब दोनों का साइड चेंज कर दिया गया है. बट आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और एनसीईआरटी में ये जो फ्लावर लाइक बना हुआ है ना, ये फ्लावर लाइक जो है, ये हमेशा याद रखना, दिस इज आर्चिगोनिया. ठीक है, और ये इसमें आर्चिगोनिया फॉर्म होंगे. और यहाँ पे ये जो है दूसरा वाला जो दूसरा है, दिस इज एंथ्रीडियोफोर. ठीक है, यहाँ पे एंथ्रीडिया डेवलप करेंगे. तो ये याद रखना, जो फ्लावर टाइप है वहाँ पे दैट इज आर्चिगोनियोफोर एंड जो दूसरा है वो दैट इज एंथ्रीडियोफोर. ओके, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so this is the next structure and this this is the next slide, and this next slide gives you the information what is the life cycle of Marchanchantia. ये थोड़ा सा आपको बहुत टिपिकल लग रहा होगा, बट आपको ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए लिया है, और एक बार आप ये डायग्राम समझ जाओगे तो क्लियर पिक्चर हो जाएगी आपके इसमें कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है. ठीक है, क्योंकि ये आप पहली बार ही पढ़ रहे हो. ओके, इसमें देखो एक तो दो कलर दिए हैं, व्हाइट और ब्राउन. ओके, यस. नाउ यस, हियर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डिप्लॉयड जनरेशन. ठीक है, डिप्लॉयड जनरेशन कौन सा है, ये वाला. ओके, ब्राउन कलर का. देन हैप्लॉयड जनरेशन मीन्स ये वाला. ठीक है, दिस वन. एंड ये वाला जो है दिस इज हैप्लॉइड, मतलब यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम नंबर होगा दैट विल बी n, एंड हेयर सिंस इट इज डिप्लॉयड देयरफॉर हेयर द क्रोमोसोम नंबर विल बी 2n. ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा आपका 2n. ठीक है, यस. नाउ हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स, आप इन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो. हियर द फर्स्ट वन, एक मिनट, दिस वन, यस, दिस वन इज द मेच्योर गेमिटोफाइट, मतलब कि जब ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट कैसे करता है वो भी हम आएंगे. अभी हमने इन दोनों थैलस को देखा. ठीक है, तो यहाँ पे ये आप सिंबल एक देख रहे हो, ये दिस सिंबल इज द सिंबल फॉर द फीमेल, एंड यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है ये सिंबल आपको दिख रहा है मेल का. ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल जो है, फीमेल के जो गैमीट्स हैं, इट विल गिव राइज टू द मेच्योर गेमिटोफाइट. सिमिलरली जो मेल के गैमीट्स हैं दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट्स. अगर वो फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करे, मतलब अगर वो एक नया ऑर्गेनिज्म ने नया प्लांट प्रोड्यूस करता है, सो इट विल फॉर्म द मेल थैलस. ठीक है, ये फीमेल जो है फीमेल थैलस ये रहा. अब इसका फीमेल थैलस का अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है यहाँ पे कि ये जो इसके कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द गैमा कप. मैच्योर गेमिटोफाइट, मैच्योर गेमिटोफाइट इज द गेमिटोफाइट विच गिव राइज टू द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जब इसमें ये अपराइट स्ट्रक्चर्स नहीं बनते तो वो केवल गेमिटोफाइट है. ठीक है ना, आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर. और जब इनमें ये अपराइट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तो ये क्या हो गया आपका मैच्योर गेमिटोफाइट. ठीक है, ओके. अब इसमें से आप देखोगे व्हेन दे आर मैच्योर दिस, ये आर्चिगोनियोफोर था ना, इसमें से देखो ये आपको दिख रहा है, ये और एनलार्ज व्यू है. इसमें ये यू कैन सी दिस अम्ब्रेला लाइक. ओके, इस अम्ब्रेला लाइक के नीचे आपको दिख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स. इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं आर्चिगोनियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इस थैलस के नीचे आपको दिख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, दे आर नोन एज द एंथ्रीडियम. अब यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, तो एंथ्रीडियम का दोनों ही आप देख सकते हो कि अपसाइड डाउन है, मतलब थैलस के नीचे लगे हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर इंश्योरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि एंथ्रीडियम उसके नीचे है, और यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हो कि जो आर्चिगोनियम भी अपसाइड डाउन है. आर्चिगोनियम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एग. एक ही एग है यहाँ पे, सिंगल एग है ना, वन एग. ठीक है, वन. ओके, और यहाँ पे एंथ्रीडियम में आप देखो कि मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस. ठीक है, तो एंथ्रीडियम विल फॉर्म द
sperms, and now both of them when there is process of fertilization में आप देखोगे कि यहाँ पे ये एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम तो वहीं पे रहेगा, सॉरी जो एग है, एग इज नॉन मोटाइल सो इट विल रिमेन देयर, बट द स्पर्म सिंस दे आर मोटाइल दे विल मूव फ्रॉम देयर प्लेस टू दिस प्लेस। कहाँ पे मूव करेंगे? एग के पास, ताकि फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म विल बी नोन एज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज नोन एज द जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसे क्या कहेंगे हम? जाइगोट। एंड यू कैन सी ये जो अब यहाँ पे एग है वो फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट में चेंज हो जाएगा। तो आपको बताया था कि जाइगोट विल डिवाइड एंड रीडिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। सो ओके, सो जाइगोट विल help in formation of the embryo. Okay, this embryo will form the young sporophyte, क्योंकि एम्ब्रियो में 2n की कंडीशन रिस्टोर हो गई ना। यहाँ तक तो देखो ये एग जो था ये n था, यहाँ पे जो स्पर्म है ये क्या था? n था। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी कंडीशन आ गई? 2n। तो ये जो स्पोरोफाइट है जो हमारा ब्राउन कलर का था, ये स्पोरोफाइट में कौन सी कंडीशन मेंटेन हो गई है? द कंडीशन इज 2n। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2n की कंडीशन मेंटेन हो गई एंड द जाइगोट विल फॉर्म अ यंग स्पोरोफाइट, ठीक है। तो एक यंग स्पोरोफाइट बन रहा है यहाँ पे एंड दिस विल डेवलप। अब आपको मैंने एक लाइन बताई थी ना कि जो स्पोरोफाइट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि ये जो स्पोरोफाइट है ये डेवलप तो कर रहा है बट ये अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहा है? ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है गेमिटोफाइट से। ओके, so this young sporophyte it is taking its nutrition from the gametophyte, और यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है गेमिटोफाइट का, ठीक है। तो इसके अंदर तो स्पोरोफाइट डेवलप कर रहा है एंड यहाँ पे 2n की कंडीशन थी, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन विच मेक्स द क्रोमोसोम नंबर हाफ, ठीक है ना। तो उससे मियोसिस के बाद स्पोर्स फॉर्म होंगे और स्पोर्स में अगेन n वाली कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। एंड ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे, कुछ बनाएंगे। ये स्पोर्स अलग अलग स्ट्रेन्स के होते हैं, सम आर फीमेल एंड सम विल फॉर्म द मेल थैलस, ठीक है। तो यहाँ से स्पोर्स डेवलप होकर मेल थैलस बनाएंगे और यहाँ से कुछ जो है स्पोर्स डेवलप होकर क्या बनाएंगे? फीमेल थैलस। नाउ आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द लाइफ साइकिल। अगर आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई है तो मुझे यहीं बता दो, ताकि फिर मैं आगे वाली स्लाइड पे मूव नहीं करूँ, नहीं तो मैं इसी को दोबारा से समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट, so say if you have understood this slide please type yes so that I can move further। नहीं तो मैं इसी स्लाइड में आपको एक बार और इसको समझा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी आपको बहुत बार डायग्राम से क्या कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा, ठीक है। यस, ओके, सो सब समझ में आ गया इसमें। सो शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये स्टूडेंट, ओके, सो सम एक बच्चे ने बोला मैम वंस मोर। ओके चलो, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके चलो, ओके स्टूडेंट, सो मैंने आपको बोला था सबसे पहले एक चीज, where is the pointer? Yes, okay, first this is these are the mature gametophyte, okay, and ma'am not clearly visible but students I am seeing my mobile also। मोबाइल में मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है, मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं साथ ही साथ अपना मोबाइल भी देखते जा रही हूँ जहाँ पे आपके पास स्ट्रीमिंग जा रही है, तो मोबाइल में आई थिंक इट इज विजिबल क्लियरली। हो सकता है नेटवर्क का कुछ इश्यू आपके कंप्यूटर पे हो जो नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे तो क्लियर है, ठीक है। ओके, सो ये दोबारा आप लोगों ने बोला समझाने के लिए, मैं दोबारा बता रही हूँ। ये मेच्योर गेमिटोफाइट है, ठीक है। ये फीमेल थैलस है, दिस वन इज मेल थैलस, ठीक है।
फीमेल थैलस में क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे विच इज नोन एज द आर्चिगोनियम। मेल उसमें एक जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी एंथ्रीडियम, ठीक है। आर्चिगोनियम में एग बनेगा, एंथ्रीडियम में स्पर्म बनेगा, दोनों यूनाइट होंगे और जो स्पर्म है वो मूव करके कहाँ पे जाएंगे, एग के पास। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, मतलब 2n की कंडीशन आ गई। ओके, अब ये जाइगोट जो है ये डिवाइड करेगा बहुत बार और ये एक बना देगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में भी 2n की कंडीशन है। एम्ब्रियो जो, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो वही रहता है, सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे नाउ एम्ब्रियो जो है इट विल डिवाइड मेनी टाइम्स अगेन बाय माइटोसिस टू फॉर्म द मैच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैच्योर स्पोरोफाइट में, यहाँ पे मैच्योर स्पोरोफाइट है, ठीक है। एंड उसके बाद this meiosis will take place and it will lead to formation of the spore. So students, I will move to the next slide. ओके, ये हमने अभी कंप्लीट कर लिया लिवरवॉर्ट्स। नाउ अब हम पढ़ते हैं मॉसेस। मॉसेस में जो गेमिटोफाइट है वो 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटोनिमा, ये भी आपको डायग्राम में बता दूंगी। मॉसेस में आपको, अब वो चीज भूल जाओ ब्रायोफाइट थोड़ी देर के लिए, अब हम नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स में लिवरवॉर्ट्स, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट मॉसेस, ठीक है। सो मॉसेस में जो 2 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज प्रोटोनिमा, ठीक है, जो कि स्पोर से डायरेक्टली डेवलप करती है। द सेकेंड, और जो ये जो प्रोटोनिमा होती है, जैसे क्रीपिंग ग्रीन, मतलब कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। पहला थ्रेड लाइक और जो दूसरा स्टेज होता है उसे क्या कहते हैं, लीफी स्टेज, ठीक है। जो लीफी स्टेज है ये कहाँ से डेवलप होता है, दिस डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। पहला एक प्राइमरी प्रोटोनिमा, दूसरा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ओके। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहाँ से आता है, और लेटरल बड इज फॉर्म्ड, जो जहाँ पे प्रोटोनिमा बन रहा है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वहीं पे एक लेटरल बड बन जाता है, उससे सेकेंडरी प्रोटोनिमा अराइज होता है। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है इसका सेकेंड स्टेज होता है, ठीक है। तो पहला स्टेज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और सेकेंडरी स्टेज जो सेकेंड स्टेज होता है दैट इज फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और वो एक लीफी स्टेज होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन बाय बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। मतलब कि एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो फ्रैगमेंटेशन से होता है, और कैसे होता है, बडिंग कहाँ पे होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो हमने पढ़ा उसमें होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स आपको पहले जैसे उसमें था सेम सिमिलर है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ठीक है। देन स्पोरोफाइट इन मॉसेस आर मोर डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल। जो इसका मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये ज्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू लिवरवॉर्ट्स, और इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, फूड सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें, फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम एंड स्पैगम, ठीक है, ये 3 हैं, फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम एंड स्पैगम। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये प्रोटोनिमा का स्ट्रक्चर आपके बुक में नहीं है, जानबूझ के मैंने इसको रखा है ताकि आपको प्रोटोनिमा पता तो चले कि क्या है। अब इसमें आप देख सकते हो कि प्रोटोनिमा दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सारे थ्रेड ही थ्रेड बने हुए ना, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, प्रोटोनिमा। नाउ इट विल गिव राइज टू सम, ये इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से दूसरे स्ट्रक्चर अराइज हुए जिसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। मतलब ये प्रोटोनिमा ऐसे ऐसे करके ग्रो होगा और इसी से अपराइट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएंगे जिसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है वो ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जिससे कहेंगे सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या थी, ये प्रोटोनिमा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको पता है राइजोइड्स हैं, और ये बड है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ये वाला अपराइट स्ट्रक्चर जो कि प्राइमरी प्रोटोनिमा से आया है, इससे कुछ बड अराइज होंगे और ये जो बड है इट विल गिव राइज टू दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now the next slide is the presence of the structure of funaria. Funaria का structure है next slide में. Okay, now here as I have told you कि जो उसका primary stage जो generation होता है that is gametophyte, और जो second जो उसके आगे की stage आते हैं that is sporophyte, and sporophyte is dependent on gametophyte, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया कि रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, राइजोइड होता है, दिस इज द मेन एक्सेस, और जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा इट विल गिव राइज टू दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड फ्रॉम दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर द स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड, एंड दिस स्पोरोफाइट हैज दिस, यू कैन सी
यहाँ पे स्पोरोफाइट में नीचे का जो स्ट्रक्चर है जहाँ से ये अटैच होता है, इट इज नोन एज फुट, इट इज द मिडल वन इज नोन एज सीटा, एंड ऊपर वाले को जिसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं उसको कहते हैं हम कैप्सूल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका फ्यूनेरिया, गेमिटोफाइट नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, स्पोरोफाइट। मतलब गेमिटोफाइट है, मतलब गेमिटोफाइट में क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, द क्रोमोसोम नंबर विल बी n, okay, and here the sporophyte the chromosome number will be 2n। ठीक है, नाउ हम यहाँ से मूव करते हैं दूसरे उसमें स्पैगम। स्पैगम में भी यही देखो आपको इसकी ब्रांचेस दिख रही होंगी, आर्चिगोनिया की ब्रांच और यहाँ ये है एंथ्रीडिया की ब्रांच। थोड़ा सा ब्लैक है इसीलिए इजीली विजिबल नहीं है, बट दोनों अलग अलग ब्रांचेस में हो सकता है, और यहाँ से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एंथ्रीडियल ब्रांच से एंथ्रीडिया फॉर्म होगी और आर्चिगोनियल ब्रांच से आर्चिगोनिया। ठीक है, we will move to the next slide. Now life cycle of mosses, ये life cycle of mosses, ये भी डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, मैंने जानबूझ के लिया है आपको एक पिक्चर बताने के लिए कि मॉसेस का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है। ठीक है, अब इसमें देखो जो लाइट ग्रे कलर है दिस इज डिप्लॉइड 2n, जो डार्क ग्रे कलर है ये है हेप्लॉइड n 1n। ठीक है, मतलब n। ठीक है, डिप्लॉइड लाइट ग्रे कलर का है, सेम वही जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि एंथ्रीडियल हेड। ठीक है, ये एक मिनट, यस, ओके, नाउ हियर ये देखो एंथ्रीडियल हेड, मतलब कि ये ऐसा थैलस है, रेड कलर का मैंने इसमें पेन सेलेक्ट किया है तो आप वो वाले टिक मार्क देना देखना। ओके, एंथ्रीडियल हेड में यू कैन सी जो टिक मार्क है ये मेल थैलस है। ठीक है, देन आर्चिगोनियल जो है, सॉरी कहाँ पे चला गया, पॉइंटर ऊपर चला गया। ओके, इतना छोटा पॉइंटर कि इवन आई एम नॉट एबल टू सी। ठीक है, सो आर्चिगोनियल देखो ये दिस इज द फीमेल थैलस। ठीक है, दोनों से क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल थैलस से स्पर्म प्रोड्यूस होंगे फीमेल, और एग जो फीमेल थैलस है उससे क्या प्रोड्यूस होगा, एग। मेल थैलस से क्या प्रोड्यूस होगा, स्पर्म। ठीक है, दोनों का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, और ये इसके लिए स्पर्म को एग के पास जाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फीमेल थैलस में। ठीक है, मतलब फीमेल गेमिटोफाइट में है। अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, जाइगोट, मतलब 2n की कंडीशन आ गई। ठीक है, देन इट विल फॉर्म द जाइगोट विल डिवाइड एंड रीडिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में कौन सी कंडीशन है, 2n। स्पोरोफाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, तो जो लोअर स्ट्रक्चर होता है, यस, जो लोअर स्ट्रक्चर है जहां से ये स्पोरोफाइट अटैच है दिस इज फुट, मिडल स्ट्रक्चर इज सीटा एंड दिस इज कैलिप्ट्रा। तो उसके एक ऊपर का पॉइंट इसको कहते हैं कैलिप्ट्रा, ये एक्चुअली कैप्सूल है। ठीक है, कैलिप्ट्रा इज द पॉइंट ऑफ द कैप्सूल। स्पोरोफाइट से हम आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पे जो है कैलिप्ट्रा के इज इजीली विजिबल, ये कैलिप्ट्रा हो गया, एंड इससे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, 2n। Now what process will take place in this, meiosis। meiosis से क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स के क्रोमोसोम नंबर क्या रहा, n। ठीक है, so now the spores will germinate and after germination they will form the young gametophyte। ठीक है, यहाँ पे गेमिटोफाइट बनेगा एंड दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और माइटोसिस बहुत सारे जो स्पोर्स में स्पोर्स तो बने हैं मियोसिस से, मियोसिस हुआ मतलब n है क्रोमोसोम नंबर। ओके, एंड नाउ द स्पोर्स विल फॉर्म द यंग गैमेटोफाइट। कुछ जो है मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा और कुछ जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है, लाइफ पैटर्न। इसका लाइफ साइकिल पैटर्न आपको मैंने बताया है कि जो इसका लाइफ साइकिल पैटर्न होता है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, मतलब जो पहली फेज है गेमिटोफाइट ये वाली, ये हैप्लो है n, और दूसरी स्पोरोफाइट जो कि है क्या, 2n। ठीक है, तो इट इज 2n। नाउ इसमें आप देख सकते हो कि गेमिटोफाइट पिंक जो है गेमिटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है वो n है। ठीक है, आप ये थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वो मैंने अभी तक दो आपको लाइफ साइकिल बताई ना, ये दिस इज गेमिटोफाइट। ठीक है, गेमिटोफाइट n हुई
और जो ऊपर वाली है ये blue one, this is sporophyte, this is 2n. तो alternation of generation you can see haplo, and this type of generation, the presence of two type of generation in the life cycle of bryophytes is known as the haplodiplontic life cycle, where the sporophyte, you can see the major part यहाँ पे blue color sporophyte का और जो gametophyte है वो n है, ठीक है. Now we'll move to the next slide. So students, this is the end of the slide and thank you for watching. Now we'll move to the board for okay students, I think now I am visible to you. So students, the class has ended and if you have any doubts you can put it here. And एक चीज़ मुझे याद है कि मैंने आपको कहा था कि questions भी मैं आपसे पूछूंगी और आप prepared भी होके आए होगे, बट थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुई है एंड दिस इज द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. सो पक्का नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू यू. अभी अगर आपके कोई डाउट्स है तो जल्दी से आप प्लीज पोस्ट कर दो सो दैट आई कैन सी योर डाउट्स एंड because this class has to be taken by the next teacher for the scheduled live streaming, right students? ठीक है, तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप प्लीज बता दो. Where is the apex present मैम? apex किसी भी चीज के टॉप मोस्ट पोजीशन को कहते हैं. जैसे कि कैप्सूल था ना, तो कैप्सूल का जो पॉइंटर हेड है ना, दैट इज एपेक्स. ठीक है, और कुछ, कोई और डाउट? Okay students, so thank you for watching me and for attending the lecture which are organized by AECS for Rawatbhata, and we'll meet in the next lecture and where we'll study more about plants and we'll move to the next category of plant, that is the pteridophyte. Thank you for watching.